سر دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت سسٹم میں تھے تو انہوں نے حضرت معاویہ بن یزید کو خلافت کیوں سونپی؟ اگر دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر سے علی تک تو ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، مطلب خلافت نہیں تھے۔ اگر ہم حسن کو دیکھتے ہیں تو علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے بولا تھا عوام کو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ سے کر لو، مطلب انہوں نے خود سے خلاف۔ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں تو علی رضی اللہ نے کہا کہ آپ کو لگے آپ لوگوں کو تو بنا دو۔ کیا کہا کہ آپ لوگوں کو لگے تو بنا دو۔ منع تو نہیں کیا نا کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا، منع تو نہیں کیا نا میرے بیٹے کو نہیں بنانا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر، لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا دے، کہا بالکل نہیں بنانا، بالکل نہیں بنانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے سے منع فرما دیا، کہا میرے اس بیٹے کو نہیں بنانا۔ میرا سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ نے کیوں نہیں منع کیا؟ بتاؤ ذرا۔ سر علی ابن طالب رضی اللہ عنہ نے منع نہیں کیا، مطلب مسلمانوں کو اوپر چھوڑا کہ انہوں بنائے یا نہ بنائے، اللہ عالم، لیکن انہوں نے بنایا تو بنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا۔ جی جی، تو جب عمر رضی اللہ نے منع کر دیا میرے بیٹے کو نہیں بنانا، یہ کچھ لوگوں کا معیار یہ ہے کہ اگر خلیفہ کے بعد بیٹا بن گیا تو وہ ملوکیت بن جائے گی، تو پھر معیار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معیار تھا کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا، منع کر دیا کہ اگر بیٹا بنتا ہے تو ملوکیت بن جائے گی، تو علی رضی اللہ نے کیوں نہیں منع کیا؟ ان کا نہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹا بننے سے خلافت ملوکیت نہیں بنتی ہے، کوئی بھی بنائے، کوئی بھی بنائے۔ دیکھو دوسرے خلیفہ نے منع کر دیا میرے بیٹے کو نہیں بنانا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ منع نہیں کیا، انہوں نے، سمجھ رہے ہو، منع نہیں کیا۔ جی جی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ منع، ہم تو استدلال کریں اس بات سے کہ منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنتا ہے تو وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ملوکیت ہے۔ تو سر تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یزید کو بھی خلیفہ تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل بالکل خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کی بحث بعد میں، پہلے یہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بننے سے ملوکیت آ جاتی ہے، اگر یہ آپ کی دلیل ہے تو علی رضی اللہ کے بعد حسن رضی اللہ بھی خلیفہ بنے، کسی نے بھی بنایا ہو، علی رضی اللہ نے منع نہیں کیا۔ علی رضی اللہ نے تو راستہ بتایا نا کہ اگر آپ بنانا چاہتے تو بنا سکتے ہو، تو میں یہاں پہ کیوں نہیں اعتراض ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے عوام پہ چھوڑا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سوال یہ ہے منع کیوں نہیں کیا؟ جیسے دوسرے خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا تھا، ایسے انہوں نے منع کیوں نہیں کیا کہ میرے اولاد میں سے کسی کو نہیں بنانا؟ تو علی ابن طالب پہ آپ تہمت لگا رہے، اس کا مطلب انہوں نے منع نہیں کیا؟ تو تہمت آپ لگا رہے ہو، میں تو کہہ چکا نا، میں تو کہہ چکا کہ ان کا منع نہ کرنا دلیل ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں کہاں بول رہا ہوں، ہاں، لیکن آپ دلیل بنا رہے کہ اگر بیٹا بن گیا تو ملکیت بن جائے گی، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر علی رضا کو روکنا چاہیے تھا نا۔ سر تو میں کہاں بول رہا ہوں، تو عوام پہ چھوڑا تھا، دوسرے خلیفہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس معاملے میں دوسرے خلیفہ کے اسوے کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیونکہ سر جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ خلیفہ بناؤ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ تو دیا نا کہ بنا سکتے ہو، لیکن دوسرے خلیفہ نے تو راستہ ہی بند کر دیا، تو وہ معیار کیوں نہیں آپ کو قابل قبول ہے؟ اگر دوسرے خلیفہ کی جو سنت رہی ہے، جو طریقہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا، اور یہاں علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ بنا سکتے ہیں، اب اگر معاویہ اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے؟ سر اس میں بہت بڑی غلط چیز ہے سر، یزید نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، آپ بول رہے ہیں انہوں نے بنایا، صحیح بنایا؟ ایک منٹ یہ بات نہیں ہوا، ایک منٹ جب خلیفہ بنا رہے تھے تب کیا پرابلم تھی بتاؤ؟ کس کے حضرت بارے میں؟ حضرت علی کے بارے میں؟ پہلے میری بات سنو، میرا آپ گئے کہ کربلا میں شہید کیا رہے ہو تو بات کی بات ہے، جب خلیفہ بنایا
मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस टाइम क्या गलती थी, क्या कसूर था यजीद का, वो बताओ। उस टाइम क्यों नहीं खलीफा बना सकते थे, क्या वजह थी? क्या कुरान में मना किया गया, हदीस में मना किया गया, कहीं पे मना किया गया? क्यों नहीं खलीफा बना सकते थे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बताओ। सर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनाया, क्यों नहीं बना। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को आवाम के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा, बिल्कुल खुद बनाया। वहीं पे और हजरत अली ने आवाम को कब यही छोड़ा? सवाल फिर खड़ा होता है कि अली रजी अल्लाह तआला ने क्यों नहीं मना किया। अगर मुआविया रजी अल्लाह पर आप सवाल उठाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बना दिया, तो सवाल अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर भी उठता है। अगर आप सहाबी रसूल अमीरुल मोमिन खलीफतुल मुस्लिमीन मुआविया रजी अल्लाह पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बना दिया, तो फिर सवाल अली रजी अल्लाह पर आता है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए रास्ता क्यों पैदा किया। फिर दूसरे खलीफा की बात याद आती है कि उन्होंने तो रास्ता बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में से, मेरे खानदान में से मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाना। तो इस मेयार पर अली रजी अल्लाह तआला ने क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे को नहीं बनाना। अगर वो कह देते तो उनके बाद हसन रज़ी भी खलीफा नहीं बने, लेकिन क्योंकि उन्होंने इजाजत दे दी, मना नहीं किया, इसलिए। तो अब अगर मुआविया पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बना दिया, तो इल्जाम फिर अली रज़ा पे भी लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को खलीफा बनने से मना क्यों नहीं किया, क्यों नहीं जो है लोगों को रोका कि तुम मत बनाना, जैसे दूसरे खलीफा ने रोका था। जी सर पहली बात तो हजरत अली अहले बैत अलैहिस्सलाम मतलब उनमें से नस्ल से थे, और अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि हमने कुरान और अहले बैत को आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, इनको पकड़ लो, आप गुमराह ना हो। तो मैं उनके ऊपर आप ये दलील, एक मिनट, आप ये दलील दे रहे हैं कि अहले बैत ने जो कर दिया, जो कह दिया, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, उस पर एतराज नहीं हो सकता। ये आपके पास दलील है? जो सही मुस्लिम के हदीस कोट कर रहे हैं, बिल्कुल उसको गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। सही मुस्लिम के हदीस में अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इन दोनों को पकड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ कुरान के बारे में कहा कि कुरान पकड़े रहना, और अहले बैत के बारे में कहा कि अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल रखना, इनके हुकूक की अदायगी करना। वहां जो अहले बैत के बारे में ये नहीं है कि इनकी पैरवी करना, ये जो कहेंगे वो मान लेना, ये हरगिज नहीं कहा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हुज्जत है, जो कह दें वो दलील है। नहीं, दलील के नाम पर आप अहले बैत का नाम नहीं पेश कर सकते। दलील कुरान है और हदीस है। अहले बैत रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी खता हो सकती है, उनसे भी इज्तिहादी खता हो सकती है, जैसे दूसरे सहाबा से हो सकती है। अगर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से हो सकती है इज्तिहादी खता, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी हो सकती है। दोनों में से कोई मासूम नहीं है, बल्कि कोई भी सहाबी मासूम नहीं है। चारों खुलफा में से हर एक से इज्तिहादी यानी मसले मसाइल में, बहुत सारे मसाइल में लोगों ने इख्तलाफ किया है, इज्तिहादी खताएं हुई हैं, लोगों ने जो है इख्तलाफ किया है। तो ये दलील नहीं है कि क्योंकि अहले बैत ने कह दिया इसलिए से, ये दलील नहीं। कुरान और हदीस की कोई दलील दीजिए। तो वो तो डिस्कशन नहीं भाई, इस बात की कोई दलील नहीं है कि बाप के बाद अगर कोई बेटा खलीफा बना दिया गया तो वो मुल्कियत होगी, या वो हराम है, या वो नाजायज है। इस बात की कोई दलील नहीं है। बल्कि चारों खुलफा का आप देखेंगे कि चारों खुलफा के इंतखाब का तरीका अलग अलग है। भाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरीके से खलीफा बने, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस तरीके से नहीं बने। और फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु जिस तरीके से खलीफा बने, वो एक अलग तीसरा तरीका था। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु जिस तरीके से खलीफा बने, वो चौथा तरीका था। अब से वो चौथा तरीका था। तो ये हर खलीफा के बाद तरीका बदलता रहा। ये जो तरीका मुआविया रज़ियल्लाहु ने अपनाया, इसको ये कहना कि गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसकी कोई दलील नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में। चलिए ठीक है सर, हम मान जाते हैं, इस पे हमको तहकीक करने की जरूरत है। ठीक है सर। जैद भाई, मैं ये भी वाज़ेह कर दूं, मैं तो अभी सिर्फ एक नुक्ते पे बात कर रहा था कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे को नामजद कर दिया, लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं है। मुकम्मल बात ये है कि उन्होंने भी उम्मत पर छोड़ा। ये इल्जाम लगाना मुआविया रज़ियल्लाहु पे कि उन्होंने अपने बेटे को नामजद कर दिया, ऐसा लगता कोई ऑर्डर कर दिया, हुक्म दे दिया कि खलीफा बनाए। अपनी हयात में बाकायदा जाकर लोगों से बात किया, सबसे मशवरा लिया, सबसे राय लिया, सबसे बैत का मुतालबा किया। अगर उम्मत उनको रिजेक्ट कर देती यजीद बिन मुआविया को, तो वो खलीफा नहीं बन सकते थे। मुआविया रज़ियल्लाहु का ऐसा कोई जबरन फरमान नहीं सादिर हुआ
कि मेरे बाद मेरा बेटा ही बनेगा। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक बात रखी, उसके बाद इसीलिए अपनी जिंदगी में बैठ लिया। देखिए यजीद बिन मुआविया की बैत 2 बार हुई है, 2 बार हुई है। कब हुई है? एक बार मुआविया रज़ियल्लाहु की हयात में वली अहदी की बैत हुई है, और एक बार मुआविया रज़ियल्लाहु की वफात के बाद। उनकी हयात में बैत की क्या जरूरत है? अगर मुआविया रज़ियल्लाहु ने जबरन ये फरमान सादिर कर दिया होता कि मेरे मरने के बाद यजीद खलीफा बनेगा, तो किसी से बैत लेने की जरूरत नहीं। अपनी हयात में मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का को जरूरत नहीं किसी से बात करने की, सिर्फ लिख देते, बोल देते मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा बनेगा, खत्म। ऐसा नहीं किया। मुआविया रज़ियल्लाहु ने अपनी जिंदगी में लोगों से बात की। अगर किसी ने मुखालफत की, सही सनद से आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नाम मिलता है जिन्होंने अपनी राय मुखालफत में पेश की। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इनके अलावा पूरे सहाबा की जमात में हत्ता कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी ने भी इसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, इसकी मुखालफत नहीं की। सिर्फ 2 सहाबा ने, वो भी इसलिए नहीं कि यजीद बुरा है, बल्कि उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये ऐसा दस्तूर ना चल बैठे। उन्होंने किसी ने भी यजीद के खिलाफ कोई बात नहीं की, यजीद को मतून नहीं किया। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ने जिस बड़े पैमाने पर राय लिया यजीद को खलीफा बनाने के लिए, लोगों से चल के बात की, उतने बड़े पैमाने पर तो किसी भी खलीफा को खलीफा बनाते हुए राय मशवरा नहीं हुआ। इतने बड़े पैमाने पर तो लोगों से बात नहीं की गई जितने बड़े पैमाने पर जो है मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से बात की, एक एक सूबे में, एक एक इलाके में खुद जाके, जिनके बारे में पता चला। जैसे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके सफर करके खुद उनसे बात किया कि भाई क्या मसला है, आपको क्या एतराज है, इस पर खुद बात किया। तो इसलिए ये कह देना कि ऐसे जबरन नामजद कर दिया, ये गलत बात है। बल्कि शुरू में तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने बिल्कुल उमर रज़ियल्लाहु की तरफ से 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, ये 6 लोगों में से कोई खलीफा बनेगा। उन 6 लोगों में से किसी का नाम लेते से 6 नाम दे दिए थे। ये भी सही सनद से साबित है। इमाम मुज़रा रहमतुल्लाह ने तारीख में और कई लोगों ने उसको नकल किया है। मेरी वेबसाइट पर भी ये रवायत मौजूद है तर्जुमे के साथ, सनद की तहकीक के साथ। लेकिन बाद में जब उनमें से कई शख्सियात का इंतकाल हो गया, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें थे, यानी उन 6 लोगों में से हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का भी नाम था। लेकिन जब कई लोगों का इंतकाल हो गया और आखिर में मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह महसूस किया कि अब उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए यह तरीका सबसे बेहतर होगा कि यजीद को हम खलीफा बना देते, ताकि इस चीज को लेकर, इस ओहदे को लेकर, इस पोस्ट को लेकर आगे जो ये झगड़ा खत्म हुआ है, जो लड़ाई खत्म हुई है, कहीं ये लड़ाई फिर न छिड़ जाए, फिर इसको लेके कोई बहसो मबासा ना हो। इसलिए अपनी हयात ही में तय कर देते हैं जो है यजीद का नाम, इसको नामजद कर देते हैं। नामजद किया, उसके बाद सबसे राय मशवरा लिया, सबके सामने बात रखी गई। जब पूरी उम्मत में से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया मेरे भाई सिवाय 2 के, तो कैसे कह देंगे कि गलत हुआ? अगर सब इख्तलाफ कर दे, देखिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद अली रज़ियल्लाहु खलीफा बने। बताइए वो खलीफा बन रहे, एक बहुत बड़ी तादाद जो है इख्तलाफ कर रही है, बहुत बड़ी तादाद जो है इख्तलाफ कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खलीफा है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा है, चाहे मतलब कितने बड़ी तादाद में इख्तलाफ किया, लेकिन वो खलीफा है। सहाबे कराम ने, अहम शख्सियात ने उनको खलीफा तस्लीम किया, उनके हाथ पे बैत की, वो खलीफा है। तो सिर्फ चंद लोगों के इख्तलाफ कर देने से किसी की खिलाफत पे असर नहीं पड़ता। तो यजीद बिन मुआविया के पास अब कितना नाम पेश करेंगे? अगर ज़ईफ रवायत देखें तो भी 5-6 से ज्यादा नाम नहीं है, और सही रवायात की रोशनी में आप बात करेंगे तो 2 से ज्यादा तीसरा नाम नहीं पेश कर सकते। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और दूसरे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इन 2 के अलावा सही सनद से कोई एक रवायत नहीं पेश कर सकते कि किसी और ने इख्तलाफ किया हो। तो अगर इख्तलाफ करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर चंद लोगों ने इख्तलाफ किया, वो भी उनका जो है इस बात से, वो भी उनका इख्तलाफ ऐसा नहीं था कि जो हम जो है कोई बगावत कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, ये करें, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी राय दे दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। बाकी पूरी उम्मत ने, सहाबा की तमाम जमातें, इतने बड़े बड़े सहाबा, इतने बड़े बड़े अहले इल्म का, आपको क्या लगता है कि वो माज़अल्लाह वो डर जाएंगे, वो हक बात नहीं कहेंगे ना? इतने बड़े बड़े सहाबा में से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। तो इन तमाम सहाबा की मंजूरी से, उनके मशवरे से, उनकी रजामंदी ही से ये अमल जो है तय पाया है। सिर्फ मुआविया रज़ियल्लाहु के कह देने से वो खलीफा, यजीद खलीफा नहीं बन गया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.